blast from the past. Some people. Where do you think this is? This is Ireland. Many moons ago. When I grew up in Ireland, it would have resembled something like this. The changes that has happened in Ireland in the last 20 years, unbelievable. Even the last 10 years, I think most people couldn't comprehend it. A huge demographic shift. And we're going from a once high trust society to now one of low trust. You can see here. Feels like one big community. Homogenous societies do better. As I said, they're one big community. They're full of people who think the same, have the same heritage, the same ideology. I guess societies like this are very high trust. You can let your children walk to school on their own. You can leave a bike out unlocked and you know you'll get it back in the day. You can drop a wallet and there's a high likelihood you'll get that wallet back. Someone will know someone who knows someone who'll get it back to you. And it's not to say you're against all other people. It's just societies, communities should be full of people that are alike. Ireland should be full of Irish people. Because then you get a high trust, well-meaning society. Yeah, it's nice. You had to guess where this beach is. Where would you guess? And this isn't the shocking part of this video. This is Belgium. So how many of you would have guessed Belgium? The shocking part of this video is I seen a statistic today. I thought it couldn't be real. Turns out it is real. 83.9% of people under 18 in Brussels, Belgium, are non-Belgium. They're not from Belgium. Either being born abroad or having no Belgian ancestry. 84%. Is that not an insane number? That means only 16% of the people under 18 years of age are actually Belgian. How fast did that happen? Okay, if you had to guess what... This was sent in to me today. On messages. Once one of the world's most romanticized cities. Hey, c'est quoi ça? Arrête! Paris is looking well. Europe. Ignore it. Pretend you don't see it. Guess where it is. This is Japan. And it was sent in to me by a Japanese woman who is obviously upset seeing this, doesn't like seeing it in her country. She says the song is associated with the PKK, which is a Kurdish terrorist organization. We have a PKK star flag in the back. अब ऐसे कई इंस्टाग्राम पे लोग हैं, मैं इनको बुरा नहीं मानता, जवान बच्चा है, ये इस पे कंप्लेन कर रहा है कि कैसे इसके देश का माहौल पिछले 20 सालों में देखते ही देखते बदल गया। ठीक है, और जैसे हम लोग भी आजकल भारत में कह रहे हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं और हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अब देखो, ना तो इस बच्चे की गलती है और ना उसकी गलती है उस माइग्रेंट की। समस्या के जड़ में जाओ, समस्या के जड़ में जाओ। अब जिस भी देश में लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाएगा, उनके दिमाग को कमज़ोर किया जाएगा, तो वहाँ पर आप लड़ाइयाँ होंगी, क्राइम बढ़ेगा, हाँ कि ना, होगा ना। अब जब क्राइम एक आम चीज़ बन जाएगी, अराजकता फैलेगी, मिसमैनेजमेंट फैलेगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ फैलेंगी, नियम कानून सब ख़त्म हो जाएंगे, हाँ कि ना। सिंपल सी चीज़ है। और हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया गया है, लोगों का दिमाग कमज़ोर कर दिया गया। फिर वहाँ से लोग, जब वहाँ पे फिर गरीबी आएगी, वहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, तो लोग वहाँ से भाग के कहीं और जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर अभी भी समाज ठीक ठाक चल रहा है,
जहाँ पर अभी भी क्राइम नहीं फैला है, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पर है ना, कॉमन सेंस है ना। मगर ये सब की शुरुआत कहाँ पर हुई? आप देखो, शुरुआत हुई दिमाग के कमज़ोर होने पे। अच्छा, फिर आपको पूछना चाहिए कि भाई पढ़े लिखे लोग भी जब लूट मार करें, जब ये अभी देखना होगा आपने बांग्लादेश में जब इतनी लड़ाइयाँ हुई वहाँ पे धर्म और मजहब की आपस में, तो कितनी पढ़े लिखे बच्चे वहाँ पे सड़कों पे लूट मार कर रहे थे, और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले। तो ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा भारत में भी और दूसरे विदेशों में भी अधिकतर जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज के, बैंक वगैरह में जो केस होते हैं करप्शन के या उसमें फ्रॉड के जो केस होते हैं, जैसे अभी वो हमारे देश में बड़े सारे फ्रॉड उजागर हुए थे, बड़े बड़े स्कैम भी फिर हम लोगों को पता चले थे जो हुए थे खरबों रुपए के। वो किसने किए थे? वो सब नेता पढ़े लिखे थे, वो सब बिजनेसमैन पढ़े लिखे थे, हाँ कि ना। मगर ये हो क्यों रहा है? तो इसका मतलब इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, आज की पढ़ाई से, जिस पढ़ाई में लोगों को मॉरलिटी, वर्च्यूज़, संस्कार जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सिखाए नहीं जाते, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्कूल तो एक धन्ना सेठ चला रहा है, जिसको अपनी फैक्ट्री में, अपने बैंक में, अपने ऑफिस में काम कराने के लिए गुलाम चाहिए। तो उस गुलाम को जो जो चीज़ें सिखानी होती हैं वो इन स्कूल कॉलेजों में सिखाई जाती हैं। समाज को, देश को अच्छा चलाने के लिए क्या चाहिए, किसी को क्या सिखाना है, वो वहाँ पर नहीं सिखाया जाता। चाहे आप MBA कर लो, चाहे आप डॉक्टरी पढ़ लो। इसीलिए आप देखते हो कि मतलब हॉस्पिटल में एक बार घुस गए तो बस आपका बिल बढ़ता ही रहेगा। हाँ, सारे ऐसे नहीं हैं। जैसे 10 में से एक वकील ठीक मिल जाएगा, 10 में से एक डॉक्टर भी ठीक मिल जाएगा, सभी ऐसे नहीं हैं। इंसानियत अभी जिंदा है, इसीलिए दुनिया चल रही है। मगर बात करते हैं फिर से दिमाग की। दिमाग को कौन कमज़ोर कर रहा है? फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ये जो बिल गेट्स जैसे लोग बेच रहे हैं। बिल गेट्स कौन है? जिसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अब वो समाज सुधार के नाम पर एक गेट्स फाउंडेशन चलाता है, जो दुनिया भर में कीटनाशक फैला रही है, वो बेचता है उनको। तो दिमाग किससे और ख़राब होता है? शराब से, ड्रग्स से, और कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे। वो जो कंटिन्यूसली आप टीवी पे गन देखते हो, पॉर्न देखते हो, सीरियल देखते हो, उनसे, फिल्मों से। अब हर फिल्म में देख लो, नीचे छोटी सी वार्निंग तो दे देते हैं, संविधानिक चेतावनी आता है ना, धूम्रपान सेहत के लिए ख़राब है। बट भाई उसको पढ़ने से क्या होता है? हीरो के हाथ में सिगरेट है तो बच्चा उसको देखेगा, बच्चे को अभी इतनी अक्ल नहीं है तो वो उसको ठीक सोचेगा नॉर्मल है सिगरेट पीना। कल को वो बड़ा होगा या छोटी सी उम्र में 8-10 साल की उम्र में पड़ोस में जाके वो सुट्टा लगाना शुरू कर देगा। फिर सुट्टा शुरू करेगा तो भाई ड्रग्स भी पिएगा, फिर चट्टा भी लगाएगा बैठ के। और अब वो फेमिनिज़म के नाम पे क्या हो रहा है? वो जो झूठी खोखली फेमिनिज़म की आड़ में घर की बेटी बहू कहती है कि ठीक है भाई, तू पिएगा तो मैं भी पीऊँगी। फिर अब बच्चे कौन पैदा करेगा? बच्चे होंगे ही नहीं, क्योंकि जिस गर्भ के अंदर शराब घुस गई, जिस गर्भ के अंदर मतलब 100 मर्दों के साथ संभोग कर लिया जिस लड़की ने, उसको तो गंदी गंदी बीमारियां फिर होंगी। और आज की साइंस बोल रही है जो लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनको PCOD और ये और वो अलग अलग प्रकार के बहुत बीमारियां होती हैं। और वो बीमारियां होती हैं तो फिर बच्चे तो होते ही नहीं फिर, या बच्चे होते हैं तो फिर पागल बच्चे पैदा हो रहे हैं, कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां वाले पैदा हो रहे हैं। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ उसका लीवर ख़राब है, छोटा सा बच्चा पैदा उसको कैंसर है, छोटा सा बच्चा पैदा अभी हुआ ही है, 2 दिन का बच्चा है, उसको पीलिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि माँ के शरीर में इतनी उष्णा है, इतनी गर्मी है मीट की, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है, 45 डिग्री तो अब बंगलोर जैसे शहर में पहुंच जाता है टेम्परेचर। उसमें आपने ऐसे उसमें मीट भी डाल दिया, मीट के ऊपर आपने शराब भी डाल दी। भाई उनके देश में, रेगिस्तान में खाने को कुछ था नहीं तो जानवर ही खाएंगे ना। और वो जो दूसरे वाले हैं रिलीजन वाले, उनके देश में इतनी ठंड होती थी, आज भी है, 40-40 -40 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेम्परेचर में उनको शराब पी के गर्म रहना ही पड़ता था। बिजली तो पहले थी नहीं जो हीटर लगा लेंगे जी। तो उनकी जो किताबें बनी उसमें बोला गया कि हाँ शराब पी लो, आप कोई नहीं, जिंदा तो रहना है, ठीक है आप मीट खा लो क्योंकि जिंदा तो रहना है। मगर हमारे देश में जहाँ पे दुनिया का हर फ्रूट उगता है और सस्ता भी है, दुनिया का हर मेवा उगता है, हर ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश, हर चीज़ उगती है, केसर, हमारे देश में हर चीज़ है और सस्ती भी है और बढ़िया क्वालिटी की भी है। ऐसे देश में आप ऐसी चीज़ क्यों खा रहे हो जिससे आपको कैंसर हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है,
मुंह में वो बन रहे हैं, मोटे मोटे से टंटोले से बन जाते हैं, रसोलियाँ बन जाती हैं। ऐसी चीज़ जो आपको माँ बनने नहीं देती, ऐसी चीज़ें क्यों खा रहे हो? ऐसी चीज़ जिससे आपके हार्ट ख़राब हो रहे हैं छोटी छोटी उम्रों में, छोटी छोटी उम्रों में 40-40, 50-50 साल की उम्र में शुगर की बीमारियाँ हो रही हैं, वो कोक पेप्सी पी पी के, लिम्का पी के, थम्स अप पी के। क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो टीवी पे कंटिन्यूसली विज्ञापन आते रहते हैं, एडवर्टीजमेंट आती रहती है। जो भी फिल्म देखते हो उसमें वो गंद चलता रहता है, या तो वो लोंडिया के पीछे भाग रहा है, या लोंडिया उसके पीछे भाग रही है, या फिर वो चोरी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। हुई चोरी चने के खेत में है, मतलब रेप कल्चर को बढ़ाया जा रहा है इन गानों के द्वारा। वो क्या गाना है वो, नाना जी माफ़ करना चोरी मारे से हो गई, कुछ ऐसा गाना है ना। मैं तो छत पे गई थी तो ये हो गया। मतलब कि आप नीचता को नॉर्मलाइज कर रहे हो। और जब बुद्धि ख़राब हो जाती है, आप गंदी चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, आपका दिमाग टांगों के बीच में घुसा रहता है, टांगों के बाहर आपकी बुद्धि निकलती नहीं 80 साल की उम्र तक, मरते दम तक। आप इतने, अब बोल ही देता हूँ, इतने सेक्सुअल हो जाते हो। तभी तो इनको हमारी जो भगवानों की मूर्तियों में सेक्स दिखाई देता है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी नीच हो गई, बुद्धि ज़ॉम्बी बन गई। समझ रहे हो बात को? जब बुद्धि इतनी ज़ॉम्बी बन जाती है कि वो सेक्स के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती, उग्र बुद्धि हो जाती है, वो टिक के बैठ नहीं सकती, रेस्टलेस हो जाती है, जिसको ADHD कहते हैं। ऐसी बुद्धि जब हो जाती है इन गंदी चीज़ों से, और वो बाप फिर, और ऐसे माँ बाप फिर ज़ॉम्बी को ही पैदा करते हैं, फिर ऐसी कमियाँ खून में आ जाती हैं, बीमारियाँ मानसिक खून में आ जाती हैं, तो फिर वो छोटे छोटे बच्चे ही फिर वो बुढ़ी औरतों के रेप करते हैं अपने, फिर वो अपनी बहनों से शादी करते हैं, अपनी माँओं को भी नहीं छोड़ते, है कि नहीं? हमारे में 3 साल के बच्चे का मुंडन क्यों करते हैं? ताकि जैसे हम पेड़ को, आपने देखा होगा, पेड़ की छटाई करते हैं, पेड़ की छटाई करते हैं तो पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसकी ग्रोथ, उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है ना। ऐसे ही जब इंसान का मुंडन किया जाता है सिर का, तो उसकी सारी शक्ति ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, तो उससे बुद्धि बढ़ती है, उससे ब्रेन के न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। और उसी उम्र में आप बच्चे का अगर वो कर दो, उसको काट दो, तो सारा का सारा बच्चे की जो शक्ति है नीचे सीमित हो जाती है, वहीं अटकी रहती है पूरी उम्र तक। फिर उसका दिमाग नहीं बढ़ता, वो तो फिर देखने में इंसान है, वो केवल देखने में इंसान है, उसका वो अब ज़ॉम्बी बन गया। समझ रहे बात को? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं समाज में ताकि आपकी बुद्धि का विकास ना हो, आप ज़ॉम्बी बन जाओ। और देखो, पहले आपको ज़ॉम्बी बनाते थे क्योंकि उनको अपने बैंक चलाने थे, अपनी फैक्ट्रियाँ चलानी थी, आपको मजदूर बनाना था, है ना। उसी के हिसाब से उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट करके अपने स्कूल बनाए, जहाँ पर उनको गुलामी की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स आ गए हैं। अगर आपको पता होगा तो एक टेस्ला नाम की कंपनी है जो ऐसी कार बनाती है जो अपने आप चलती है। आजकल आप भारत में भी बड़े बड़े होटलों में जाओगे तो वहाँ पर जो वेटर का काम है, कुकिंग का काम है, वो मशीन करती है। अगर आप किसी कार बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो गुड़गांव, मानेसर एरिया में, तो आपको पता होगा कि मारुति में जो असेंबली लाइन होती है उसमें 60-70% जो काम है कार को बनाने का, वो एक रोबोट कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है उस काम को। तो धीरे धीरे इन्होंने इस तकनीक को, इस विज्ञान को इतना आगे बढ़ा लिया है कि आजकल अस्पतालों में जो सर्जरी होती है वो भी रोबोट कर रहा है। आप मैक्स हॉस्पिटल जाओ, कि दिल्ली के मैक्स अस्पताल जाओ, या ये धीरू भाई अंबानी का जो अस्पताल है बॉम्बे का, ऐसे ऐसे अस्पतालों में जाओ, छोटे अस्पतालों में भी इनफैक्ट आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि वहाँ पर रोबोट मशीन लोग पेशेंट्स की सर्जरी कर रही है। समझ रहे बात को? तो ये विज्ञान इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे इनको इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल गेट्स वगैरह जैसे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दुनिया की आबादी जो है 800 करोड़ के करीब है, या शायद थोड़ी कम हो गई होगी कोविड के बाद, वहाँ पर ये आबादी घटकर 100 करोड़ के करीब रह जाए, और फिर जो पूरे दुनिया का जो पूरा धन दौलत है वो सब इन्हीं के लिए रहे, ये खुद ऐश करें और मशीनों से काम कराते रहें। तो हमको ये रिप्लेस कर देंगे रोबोट से, ये इनका मकसद है। इसीलिए हवा को पोल्यूटेड किया जा रहा है, खाने को दूषित किया जा रहा है, मिलावटी चीज़ें, हर चीज़ में केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हमारी मिट्टी में डाले जा रहे हैं। तो आपके शरीर को भी ख़राब किया जा रहा है, और आपके दिमाग को, मोबाइल फ़ोन में जो कंटेंट आपको दिखाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको जो फिल्में दिखाई जाती हैं, सीरियल दिखाई जाते हैं,
मतलब कि मैं इसको बोलता हूँ आपको, एक ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है। ज़ॉम्बी क्या होता है? जो दिखने में इंसान है मगर वो जानवर से भी नीचे का है। उसकी जड़ चेतना, उसकी चेतना जड़ हो चुकी है। ज़ॉम्बी गूगल कर लेना, दिखने में कैसे लगते हैं पता चल जाएगा किसको कहते हैं ज़ॉम्बी। ZOMBI, ज़ॉम्बी, शायद यही स्पेलिंग है इसकी। तो भैया फिर आपके ऊपर है, लंबा ज्ञान आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि 3 घंटे तक बैठ के आप शराब की बोतल पी लोगे, ड्रग्स पी लोगे, पड़ोस में चिल्लम लगा लोगे, 3-3 घंटे के आप वो उर्दू के सीरियल देख लोगे, सास बहू टाइप के पागलों वाले, मगर आप ज्ञान नहीं सुन सकते। और स्कूल कॉलेज में ज्ञान मिलता नहीं है। आजकल तो स्कूलों में ही ये गानों पे बच्चों को एक वैश्या की तरह नचाया जाता है। हमारे खुद के घरों में बहू बेटियाँ भद्दे कपड़े डाल के शराब का गिलास पकड़ के अपने ही माँ बाप भाई बहनों के साथ डांस करती हैं। बताओ, हमारे देश का कल्चर ऐसा था कि हम नृत्य और संगीत दोनों का आनंद खूब लेते थे। हमने ही उनको बनाया है। हमारे ही देश ने तो संगीत बनाया। हमारे देश में हर चीज़ दुनिया की हमारे देश ने बनाई है। सब कुछ सनातन से आया। मगर संगीत और नृत्य को हमारे देश में आध्यात्मिकता की दृष्टि से उसको एंजॉय किया जाता था। मगर अब आप ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि जड़ हो गई है। जड़ बुद्धि को बस एक ही चीज़ की एंजॉयमेंट मिलती है, वो किसकी? आप समझ गए होगी किसकी। चलो बोल देता हूँ, सेक्स की। उसके सिवाय रोटी और सेक्स, 2 ही प्रकार की चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हो। मैंने कितने लोगों को देखा है जो अब म्यूज़िक को भी एंजॉय नहीं कर पाते। जो लोग अब कविता जैसे होती है, पोएम्स होती हैं, वो कविता को एंजॉय नहीं कर पाते, कविता को समझ ही नहीं पाते, कविता को फील नहीं कर पाते। जैसे गर्म चाय पीने से आपकी ज़ुबान धीरे धीरे सड़ जाती है ना, और उसको फीलिंग ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा होटल में जो वेटर लोग होते हैं, वो गरम गरम चीज़ उठा लेते हैं। हलवाई बहुत गरम गरम तवे, गरम बर्तन को हाथ से उठा लेगा बिना बीच में कपड़ा उपड़ा लिए या चिमटा लिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो ऊपर की चमड़ी है उसकी सड़ के पत्थर बन गई है, जड़। ऐसी हमारी चेतना बुद्धि भी सड़ जाती है और फिर वो जड़ हो जाती है, उसकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप जानवर को झटका दे के नहीं खाते, उसको हल्का सा उसके गर्दन को काट देते हो, उससे तड़प तड़प के जब वो उसका खून निकल जाता है बाहर, फिर खाते हो आप उसको, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। आपको दूसरे का दर्द ही नहीं लगता। सड़क पे कोई बंदा मरा पड़ा हो, आप उसको अस्पताल नहीं लेके जाते, बल्कि अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप ये देखते हो कि अच्छा, इसका मोबाइल फ़ोन चोरी कर लूँ, इसका बटुआ मार लूँ, या इसके साथ कोई, मतलब लोग इतने ज़्यादा जड़ हो जाते हैं इनके समाजों के कि मरे हुए के साथ भी वो रेप करते हैं। इसीलिए तो साका किया जाता था, जिसको इन्होंने बोल दिया सती 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 हो रहा जी, सती, हिंदू सती करते हैं। भाई वो सती पति नहीं था, वो साका करते थे, क्योंकि अगर युद्ध में हार जाते थे तो बहू बेटियों के मृत शरीर के साथ भी रेप किया जाता था। इसलिए वो बेचारी जो महिलाएं थीं, अगर उनके पति युद्ध में हारते थे तो अपने शरीर को जला देती थी वो, ताकि उनके मृत शरीर के साथ गंदा काम ना करें ये ज़ॉम्बी लोग। तो भाई कहने का मतलब ये है कि आप एक तो बच्चे पैदा करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अगर आपको लग रहा है हाई बड़ा खर्चा होता है बच्चा का, तो फिर वो कैसे 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं भाई? अगर आपको खर्चा ज़्यादा लगता है तो आप अपने जीवन को ऐसे चलाओ कि उसमें खर्चा ना हो। आज लोगों ने घरों घरों में कुत्ते रख रखे हैं जी। अरे गाय भैंस रख लो ना, दूध भी देगी, गोबर भी देगी, मूत्र भी देगी, जिससे कैंसर तक ठीक हो जाता है। ये साइंस बोल रही है, चेक कर लेना, ठीक है? फिर बोलोगे मैं दुबई गया था तो वहाँ पर लोग ऊँट का मूत्र पीते हैं, वहाँ पे ऊँट का मूत्र पीते हैं, तो इस पर कुछ हंसने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपको विज्ञान समझ में नहीं आता और आप जड़ बुद्धि हो तो फिर हंस लो, क्योंकि फिर आप तो पागल हो, आपका क्या करें। तो अपने खर्चे कम कर लो। आप कम से कम 4 बच्चे तो पैदा कर ही सकते हो। अपने परिवारों को टूटने मत दो, तलाक डिवोर्स मत करो, एक दूसरे को धोखा मत दो। शराब वगैरह मीट छोड़ोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, अहंकार कम आएगा, फिर आपकी पति पत्नियों की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, भाई भाई की लड़ाई नहीं होगी, मन शांत रहेगा। तो मन शांत ना होने के कारण ही वो पैसिव एग्रेशन जिसको कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि गाली गलौज करने वाला और हाथों से लड़ने वाला ही क्रोधी है। कुछ लोगों के क्रोध अलग टाइप के भी होते हैं, पैसिव एग्रेशन बोलते हैं उसको। तो उसके कारण जो आप अब कभी घर में लड़ाई हो जाए तो लोग अब बात नहीं करते 10-10, 15-15 साल। फिर ऐसे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो किसी से संबंध ही नहीं बना पाते, उनको सामाजिक रहना ही नहीं आता।
तो फिर वो ऑब्वियसली उनके तलाक होते हैं, और फिर बच्चे सफ़र करते हैं जब तलाक होते हैं माँ बाप के, तो बेचारे फिर आगे फिर उन बच्चों को फिर तकलीफ़ होती है। वो बच्चे फिर वो भी नशेड़ी बनते हैं, फिर नशेड़ी होते हैं तो फिर उनको भी कैंसर और बीमारियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। और अगर आप इतने जड़ बुद्धि हो गए और आप बोल रहे हो हाँ आजकल तो सभी बीमार होते हैं, फिर तो आप बिल्कुल ही जड़ बुद्धि बन गए। ऐसे समाज हैं और ऐसे भी कल्चर्स हैं आज भी। मेरे ही ख़ानदान में बहुत से हैं जो लोग 90 साल के हो गए हैं, उनको कोई बीमारी नहीं हुई है किसी भी प्रकार के, दिमाग भी चल रहा है, कान भी चल रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, वो ज़ॉम्बी नहीं बने, उनकी किडनी फेल नहीं हुई है। अब फिर ऐसी बात करूँगा तो कहेंगे अच्छा इसको साले को जहर देंगे, मारेंगे इसको। 3 बार तो मेरे को जहर दे चुके हैं क्योंकि मैं समाज सुधार की बात करता हूँ। बट ये तो मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ ना यार, तो क्यों मार रहे हो मेरे को? अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप घर में बैठ के ताश मत खेलो, जुआ मत खेलो, वैश्यावृत्ति मत करो, बिड़वे मत खाओ, तम्बाकू मत खाओ, तो मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ ना। शराबें मत पियो, शादी ब्याह में वो छमिया डांस मत करवाओ, आपस में मिलजुल के रहो, 4-4 6-6 बच्चे बनाओ, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, सात्विक जीवन जीना सिखाओ, खुद भी जियो। आप वो उर्दू वर्ड को बायकॉट करो। अगर मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ तो आपके भले की तो बात कर रहा हूँ भाई, नहीं तो फिर ठीक है। फिर ये जो लोग हमें मारने में लगे, हमारे ख़ानदानों को अलग अलग गंदे कानून बना के हमारे समाज को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाने हैं हर देश में कि उससे परिवार का जो सिस्टम है वही ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है फिर ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो ख़त्म हो ही गया, मेरे को तो पागल बना ही लिया इन्होंने। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ अगर मेरे अभी नाना जी होते तो मेरा ख़ानदान ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देते मेरे लिए। बट ऐसे लोग तो अब ख़त्म हो गए ना, ज्ञानी लोग तो अब ख़त्म हो गए। आज वो होते तो मेरी समस्या का समाधान होता। बट चलो छोड़ो उस बात को। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे को इन्होंने पागल बना लिया, आपको पागल ना बनाए, आपका जीवन सुखी चले, स्वस्थ चले। अगर मेरा नहीं है तो कम से कम आपका जीवन अच्छा चले। हर बंदा आपके सामने बैठ के अपनी खूब शेखियाँ मारेगा, मैंने ये क्या, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। कोई भी आपके खुद के माँ बाप ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी और उस गलतियों से सीख लो। कोई नहीं बताएगा। आपका स्कूल का टीचर नहीं बताएगा कभी आपको कि बेटा मैंने ना ये गलती करी है, तू मत करियो। अहंकार इतना ज़्यादा है लोगों में, एक झूठा प्रदर्शन करना है, लिपस्टिक परफ्यूम लगा के, ब्रांडेड कपड़े पहन के सबको अपनी एक इमेज बनानी है। इमेज मैनेजमेंट चल रहा है, मार्केटिंग चल रही है। लॉरियल, यू आर वर्थ इट। तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी जी लो। बट इतना याद रखना, जैसे जापान में, आयरलैंड वगैरह में उनकी खुद की जनसंख्या ख़त्म हो गई है, उनको माइग्रेंट बुलाने पड़े, तो वो गलती माइग्रेंट की नहीं है। आज दिल्ली में जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहा है भाई, उसकी गलती नहीं है। आप बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे। और नेता लोगों को तो वोट चाहिए और उनको अपनी फैक्ट्रियों में, अपने हॉस्पिटलों में काम करने के लिए सस्ती लेबर चाहिए। बस धन्ना सेठ जो दुनिया को चला रहे हैं उनको सस्ती लेबर चाहिए। और जब रोबोट्स वगैरह सस्ते हो जाएंगे तो फिर उनको वो सस्ती लेबर भी नहीं चाहिए। ये भी याद रखना। तो अगर कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या है तो वो भी ये याद रखे, कल को आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। आप अगर वीज़ा लेके कनाडा में टैक्सी चला रहे हो, कनाडा में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, कनाडा में ड्रग्स बेच रहे हो, तो कल को उनको आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवेंचुअली आपको भी ख़त्म कर देंगे वो। समझ गए बात को?